بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیمز ورچوئل اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہترین انداز سے گزار رہے ہوں گے، اردو کی طرح، اس طرح اردو خوبصورت ہم بولتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہم کل الفاظ مترادف کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے کیا ہے الفاظ متضاد، متشابہ الفاظ۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں بیٹا، یعنی الفاظ جو متضاد ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں، زمین کا آسمان، زندگی کا موت، یعنی الٹ ہوتے ہیں۔ جبکہ جو الفاظ مترادف ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں لکھنے میں، لیکن ان کا مطلب میننگ ایک ہی ہوتا ہے، سیم ہوتے ہیں۔ جبکہ متشابہ جو الفاظ ہوتے ہیں وہ لکھنے میں ایک، یعنی بولنے میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن لکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے آری، الف مد آری، آری درخت کاٹنے والا، لکڑی کاٹنے والا آلہ ہوتا ہے، لیکن آری عین الف آری، آری کا مطلب ہوتا ہے مجبور۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی بولنے میں آری اور آری سیم ہیں لیکن ان کے مطلب مختلف ہیں، اور لکھنے میں بھی۔ چلیں جی، آج کا لیکچر ہے واحد جمع۔ اچھا، یہ نا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ رٹا لگاتے ہیں۔ اصل میں نا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ واحد، کچھ واحد کے ساتھ جمع کے ساتھ دیکھیں، مثال کے طور پر استاد ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ جب استاد کا جمع لکھیں گے نا، بہت سارے استاد آئے، حالانکہ استاد کا جو جمع ہے اساتذہ، کہ کس کے ساتھ کیا چیز لگانی ہے، اس کی بھی ایک قانون ہے، وہ ہمیں پہلے سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کے سمجھنے کے واحد جمع تعداد کس طرح بنائی جاتی ہے، کیسا، یہ بہت بیسک ہے، پھر بھی میں چاہتی تھی تو ڈائریکٹ واحد جمع لکھ سکتی تھی، تو کچھ میں نے پہلے ہی لیکچر جو ہے نا پریپیئر کر لیا ہے، جبکہ کچھ جو واحد کے جمع رہ گئے ہوں گے وہ آپ کے سامنے کر لیں گے ہم ساتھ ہی۔ لیکن اس سے پہلے میں نے یہ لکھا ہے کہ واحد کے ساتھ جمع میں کس طرح سے ہم قواعد و ضوابط میں کوئی بھی چیز چھوٹی یہ سے لکھیں گے، بڑی یہ سے، یعنی کہ قواعد و ضوابط کے لحاظ سے ہم واحد سے جمع کس طرح سے بنائیں گے۔ اچھا، تحریر یا تقریر میں جب کوئی اسم آئے گا تو وہ واحد ہوگا، واحد مطلب ایک سنگولر، یا پھر جمع ہوگا۔ اگر واحد ہو تو اسے جمع بنانے کے لیے درج ذیل قاعدے مقرر ہیں۔ واحد کے جمع بھی ہوتے ہیں اور جمع کے واحد بھی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہے اردو میں واحد سے جمع بنائی جاتی ہے جن مذکر اسموں کے، ٹھیک ہے، آخر میں، مذکر مطلب میل جنڈر، مونس مطلب فیمیل کے، مذکر اسموں کے آخر میں الف آیا ہو، ان کی جمع بنانے کے لیے الف کو بڑی یہ سے بدل دیتے ہیں۔ یہ اس کا قاعدہ ہے، قانون ہے یا فارمولہ ہے۔ جیسا کہ لڑکا سے لڑکے، بیٹا سے بیٹے۔ دیکھیے یہ مذکر ہے نا، لڑکا اور بیٹا، یعنی میل جنڈر میں ہے، تو اس کے آخر میں الف ہے تو اس کو ہم بڑی یہ سے بدل دیتے ہیں، جیسا کہ لڑکا سے لڑکے، بیٹا سے بیٹے، ایک اصول ہے۔ اچھا، اس کا تیسرا پوائنٹ ہے، تیسرا، کچھ اسم جو کہ رشتوں کے نام ہیں یا خطابات ہیں، القابات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، ان کے آخر میں آنے والے الف واحد اور جمع دونوں حالتوں میں قائم رکھا جاتا ہے، جیسا کہ تایا، نانا، دادا، چچا۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہاں میں نے آپ سے کہا کہ یہاں الف ہے، ٹھیک ہے، یہ میل جنڈر ہے۔ یہاں میں نے کہا کہ جن مذکر اسموں کے آخر میں الف آیا ہے تو ان کی جمع بنانے کے الف کو یہ سے ہم بدل لیتے ہیں، جبکہ ادھر بھی تو آیا ہے نا، یہ دیکھ لیں، تایا کے ساتھ، چچا کے ساتھ، دادا، لیکن ان میں ہم نہیں لگائیں گے، یہ مختلف نام ہیں، رشتے ہیں، القابات ہیں۔ مثال کے طور پر ادھر ہم تایا، اگر کسی کے، مثال کے طور پر نانا، نانا، اب کتنے نانا ہوں گے، 4 5 6، اس کو ہم نانا ہی نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جیسے خالہ سے ہم خالائیں پڑھتے ہیں، لیکن ادھر نہیں پڑھیں گے، تایا کو ہم تایا ہی کہیں گے، ٹھیک ہو گیا، نانا کو نانا، دادا کو دادا، چچا کو چچا، بھلے کسی کے 4 چچا ہوں تو کیا چچا ہی نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو چچا ہی پڑھیں گے۔
अच्छा जी, इसका पॉइंट नंबर 4 है, जिन मुज़क्कर इसमों के आखिर में, ठीक है, नून गुन्ना आता है, यानी वो नून जिस पर नुक्ता नहीं होता। आम तौर जो हम सिंधी में लिखते हैं ना, लफ्ज़ हम सिंधी में लिखते हैं खुश रहंदा आयूं, जब आयूं के आखिर में जो नून होता है उस पर भी नुक्ता होता है, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं होता। जो आयूं उसका आखिर नून होता है जिस पर नुक्ता नहीं होता, लेकिन नून की तरह, तो उसे नून गुन्ना कहा जाता है। उनकी जमा बनाते वक्त तहरीर में नून गुन्ना को गिरा कर अलिफ ये नून का इजाफा किया जाता है, जो कि अलामत जमा मुज़क्कर अल्फ़ ए का बदल देता, यानी बड़ी ए का बदल देता। मसलन धुआं से धुएं, कुआं से कुएं, ये इसका फार्मूला है। अच्छा, अब देखें, जिन मुअन्नस इसमों के आखिर में ये आती है, ठीक है, यानी छोटी ये बड़ी ये नहीं है, ये छोटी ये। उर्दू में 2 ये हैं, ये देखें, ये बड़ी ये हो गया, ठीक है, ये बड़ी ये, यहाँ मिसाल समझा रही हूँ, और ये छोटी ये हो गया। उर्दू में ये जहाँ पर छोटी ये आती है, जिन मोनस यानी फीमेल जेंडर में इसमों के आखिर में ही छोटी ये आती है, उनकी जमा बनाने के लिए ये देखें अलिफ और नून गुन्ना लगाते हैं। जैसा कि लड़की से लड़कियाँ, ये देख लें, लड़की से लड़कियाँ, छोटी ये आ रही है ना, देखिए लड़की में छोटी ये आ रही है तो लड़कियाँ, तोरी से तोरियाँ, भिंडी से भिंडियाँ, समझ आ रही है। भिंडियाँ इधर लिखा नहीं है, तोरी तक ही रुक गई हूँ क्योंकि भिंडियों का सीज़न नहीं आया। चलें जी, पॉइंट नंबर 6 है, जिन मोनस इसमों के आखिर में या आता है उनका आखिरी अलिफ गिराकर, ठीक है, अलिफ और नून गुन्ना लगाकर जमा बनाई जाती है। जैसा कि बंदरिया से बंदरियाँ, लिटिया से देखिए लिटिया से लिटियाँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 7 है, जिन मोनस इसमों के आखिर में छोटी ये नहीं होती, उनकी जमा बनाते वक्त सिर्फ अलिफ ये और नून गुन्ना लगाते हैं। यानी कि जैसे कि मेज़ से मेज़ें, औरत से औरतें, लेकिन अगर ऐसा इसम मोनस अलिफ या है हो, देखिए है पर ख़त्म हो, तो वहाँ पर ऐसे लगाते हैं, अलिफ ये नून गुन्ना लगाते हैं। मसलन खाला से खालाएँ, जैसे मैंने आपको बताया कि नाना से नानाएँ हम नहीं बना सकते, लेकिन खाला से खालाएँ बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, जिन मोनस इसमों के आखिर में नून गुन्ना से पहले अलिफ हो तो अलिफ ये नून लगाते हैं। मसलन माँ से माएँ, अलिफ ये इसको ए भी कह सकते हैं, अलिफ ये नून गुन्ना। यहाँ पर ना हमने नुक्ता नहीं देना, जबकि सिंधी लैंग्वेज में असा हमेशा नुक्तो लगाए आहियूं, हिते थोड़ी गलती करेंगे हम। मसलन माँ से माएँ, अच्छा माएँ ज़रूरी नहीं है कि इधर हमने नुक्ता लगाना हो। पॉइंट नंबर 9 है, जिन मोनस इसमों के आखिर में हमज़ा, और ये हमज़ा मतलब अलिफ एट्रो मैं असल में ना मैंने तख्ती उर्दू पढ़ी है, क्योंकि ब्रॉटअप उर्दू मीडियम किया है और पिंडी इस्लामाबाद में पढ़े हैं, तो वो सिंधी तख्ती तो बहुत बाद में पढ़ी, लेकिन बहरहाल आपको ये समझा सकती हूँ कि हमज़ा मतलब अलिफ एट्रो। अब आप समझ चुके होंगे असल मीनिंग, तो बताने का मकसद ये है कि जो हमज़ा है और बड़ी ये छोटी ये नहीं है, छोटी है, तो उनकी जमा बनाते वक्त हमने ये को गिरा कर अलिफ ये नून बढ़ा देते हैं। जैसा कि गाय, इधर से गाने में नहीं लिखा है, असल लफ्ज़ है गाय, मैंने लिखा है गाय से गाय, ठीक हो गया। ये बड़ी ये को हमने गिराया और गायें मुन्ना लगा दिया। मज़ीद समझने के लिए वाहिद के जमा कुछ के तो मैंने लिख लिए हैं, कुछ के जो नहीं लिखे वो सामने आपके लिख लेंगे। अब ये देखें ना आप, असलूब
इस स्टाइल को कहा जाता है उर्दू में। असलूब का जमा होगा असालीब, उस्ताद का असातिज़ा। आला किसी डिवाइस को कहा जाता है, मार्कर ना लग जाए। अच्छा, आला का आलात होगा, ठीक हो गया। अदीब का अदबा हो गया। आफत का आफात हो गया। जुर्म का जराइम हो गया। जजीरा का जजीरे नहीं होगा, आपने लफ्ज़ सुना होगा यार बड़े जजीरे थे, ठीक है, तो उसका जजायर होगा जमा, ठीक हो गया। जद का अजदाद, आबाओ अजदाद आपने सुना होगा। तफसील का बेटा आएगा बच्चों तफासील। अच्छा, कुछ लोग जुमला बोलते हैं अच्छा जी इसकी ना तफसील बताओ, तफसीलें बताओ, जबकि असल लफ्ज़ होगा तफासील। इसका जो जमा होगा, आप बोलें या ना बोलें लेकिन आपको पता होना चाहिए। समर का असमासिर, हाँ ठीक हो गया, ठीक है, असमासिर होता है। जिन्स का, ये जिन्स है। जिन्स का अजनास, जिनसे नहीं होगा, अजनास जमा होगा उसका। अच्छा, अक़लीम का अक़ालीम। आखिर का अवाखिर। उम्मत का उम्मतें नहीं होगा, उम्मम होगा। आपने जुमला सुना होगा भाई बड़ी उम्मतें आई, कह सकते हैं हम, लेकिन लिखने में जो उसका जमा है वो उम्मम है। तदबीर का तदबीरें नहीं होगा, तदाबीर होगा। अव्वल का अवाइल होगा। तर्जुमा का तराजुम होगा। तोहफ़ा का तहाइफ होगा, ठीक हो गया। जरीदा का जराइद होगा। जज्बा का जज्बात होगा। जौहर का जवाहिर होगा, ठीक है। जुज़, ये जुज़ सिंगुलर है हमेशा, हाँ, इसको हम अक्सर बेशतर लोग जमा पढ़ते हैं, जुज़ो, ये जुज़ है, यानी सिंगुलर चीज़ है ना, इसका अज्जा उसका जमा हो गया। अच्छा, इधर 22 हो गए, ये 23 हों। आई एम सॉरी, मैंने ना यहाँ से एक पेज के अलग किए थे, एक पेज के अलग अलग किए थे, ठीक हो गया, लेकिन फिर इस हिसाब से मैंने इसको कंटिन्यू किया। हाजी का हजाज होगा। हदीस का अहादीस होगा। खलीफा का खुलफा होगा। और जहन का अजहान, ये कौन सा वाला जहन है? दिमाग वाला जहन है। जहन का अजहान होगा। ज़िक्र का अज़कार होगा। और रुकन का अरकान होगा। ज़ाहिर का ज़ायरीन होगा। सामे सुनने वाले को कहते हैं, जैसे आपने लफ्ज़ सुना होगा ये बहुत अच्छा सामे है, यानी ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। सामीन उसका जमा। सनद सर्टिफिकेट को कहा जाता है। असनाद उसकी जमा है। दीन अदियान, ठीक है। अच्छा, इधर के मैंने ये वाले नहीं लिखे, चलें जी, इसके रह गए, इसकी हम जमा लिख लेते हैं। अच्छा जी, ज़ौज का क्या होगा? अज़वाज। आप लोग भी जहन में सोचें। रम्ज़ का क्या हो सकता है? रमूज़, ठीक हो गया। सबब का हो सकता है असबाब, ठीक हो गया। अच्छा, सैयद का क्या हो सकता है? सादात, ठीक हो गया। सजदा का सजूद हो सकता है, यानी सजदा एक, सजूद बहुत सारे सजदे। रिसाला का क्या हो सकता है? रिसाइल हो सकता है, यानी काफ़ी सारे। ख़त का क्या हो सकता है? ख़त का हो सकता है खुतूत। शे का क्या हो सकता है? सोचें, गौर करें। अशिया, अशिया होगा हमेशा। अच्छा, सिन्फ असनाफ। अच्छा, इल्म का क्या हो सकता है? उलूम, आप लोगों को नज़र आ रहा है, इल्म का उलूम। और आशिक का, हाँ, उशाक लफ्ज़ होगा। आपने नाम भी सुना होगा उशाक, यानी आशिक की ये जमा है।
मैं चाह रही थी कि जो तमाम वाहिद जमा हैं वो ऐसे ही मतलब लाइव आपके सामने लिखूं, कुछ आप लोगों के जहन में भी हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैथमेटिक्स होती है, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ फार्मूलाज हो गए अगर केमिस्ट्री के, या कुछ मैथ्स, ये ना प्रॉपर सामने हल करने वाली चीज़ है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये हम लिख कर भी बता सकते हैं, आपको समझ भी आ जाती है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है। बहरहाल फिर भी मैंने ये छोड़ दिया, मैंने कहा ये जो है ना एक लाइन जो है ना आपके सामने ही लिखूंगी, समझ तो आ जाएगी, टाइमिंग भी बढ़ जाएगी डेफिनेटली आपको, और आपके अपने जहन में भी समझ आएगी। जैसे कि ज़ौज का मैं लिखने लगी थी, आपके जहन में भी आ सकता, अच्छा ज़ौज का क्या हो सकता है, रमज़ का, रमूज जब तक कि मैं लिखूं, ये भी एक तरीका ठीक है। आप लोगों को जो तरीका ठीक लगे आप मुझे बताया करें, हम वैसा ही चलेंगे। उर्दू में मैं पहले इसलिए तैयार कर लेती हूँ लेक्चर के, इसमें और कोई फार्मूला नहीं लगता, कोई मुश्किल नहीं दरपेश होती। अच्छा जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है साबके और लाहके, ये टेस्ट में आते हैं, यानी अगर आप जॉब्स में दें साबके लाहके ज़रूर आते हैं, यानी एक जुमला लिखा होता है और उसकी एक इसकी साबके की निशानदेही करें, इसके लाहके की। ये हम बोलते तो हैं साबके लाहके, ये असल में कैसे बनते हैं, इनका फार्मूला क्या है, किस तरह, बड़ा ही आसान तरीका है। आपके बहन भाई फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ते होंगे, 9th मैट्रिक में साबके लाहके हम सिखाते हैं। मैं खुद फर्स्ट ईयर इंटर 9th मैट्रिक को पढ़ाती हूँ, जिसमें बच्चों ने खसूसी तो रटाई, कुछ लोगों ने बच्चों ने लगाया होता है, लेकिन अगर हम इसको समझ लेना, बड़े मज़े की चीज़ है। तो आप अपने बहन पर उर्दू को बेहतर बनाने के लिए ना, आप जो चीज़ सुनते हैं ना, आप उसको बोलना शुरू कर दें, सिखाना शुरू कर दें बच्चों को, अपने अड़ोस पड़ोस ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें, अपने बहन भाइयों को। अच्छा, साबके और लाहके, हमारी ज़ुबान उर्दू, ठीक है, हर ज़ुबान के लफ्ज़ को कबूल कर लेती है, ये के पर मैंने के नहीं दिया, हर ज़ुबान के लफ्ज़ को जो है कबूल कर लेती है। फिर ये लफ्ज़ उर्दू में इस तरह से घुल मिल जाता है कि ज़रा भी अजनबियत महसूस नहीं होती। यानी वैसे भी आपको पता है उर्दू का मतलब क्या है, लश्करी ज़ुबान, और तुर्की का लफ्ज़ है। उर्दू बेसिकली किसी की कोई एक लैंग्वेज नहीं है, तमाम जो ज़ुबानें हैं, बोलियाँ हैं, उनका मिक्सचर जो है आप उर्दू कह सकते हैं, जिसमें सिंधी के भी हैं, पंजाबी के भी हैं, क्योंकि एक ज़ुबान तो नहीं है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के जुमलों से ये एक ऐसी बोली, एक ज़ुबान वजूद में आई जो कि हमें बोलने, समझने, कम्युनिकेशन के लिए आरामदा, आसानी है। यानी अगर पश्तो में मैं किसी के साथ बोलूँ, कोई पख्तून आ गया है, तो ना पख्तून को सिंधी आती है ना मुझे पश्तो आएगी, तो हम दोनों को जोड़ने का, कम्युनिकेशन का वाहिद ज़रिया उर्दू है। उर्दू ने हम सबको जोड़ा हुआ है, इसलिए उसे कौमी ज़ुबान करार दिया गया है। अच्छा, कि ज़रा भी अजनबियत महसूस नहीं होती, हम कभी किसी ज़ुबान का लफ्ज़ बग़ैर किसी तगय्युर के मुअय्यना रख लेते हैं, कभी कभी कुछ तगय्युर भी कर लेते हैं, यानी तगय्युर का मतलब है तब्दीली, और कभी इसका तर्जुमा करके अपनी ज़ुबान में शामिल कर लेते हैं उर्दू में, बिल्कुल। चुनांचे अज्जाए कलमा के ये नाम साबका और लाहका कहलाते हैं, हमारी ज़ुबान में राइज ना थे, ठीक है। चुनांचे ये अल्फाज जो हैं कलमा के, साबका और लाहका, हमारी ज़ुबान में राइज ना थे, हमने इनको क्या हुआ, मुफीद पाकर प्रीफिक्स और सुफिक्स का तर्जुमा करके अपनी ज़ुबान में यानी उर्दू में दाखिल कर लिए हैं। अब हम साबके और लाहके की मैंने आपको ये हिस्ट्री बता दी कि असल में क्या चीज़ है, फिर कैसे बनाएंगे साबके और लाहके। ये मैं जो बयान करती हूँ, ये साबका है, यहाँ पर नीचे वाला ये लाहका है। अच्छा, साबका उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसके किसी कलमे से पहले बढ़ाकर उस कलमे की मायनी में कुछ इजाफा या तब्दीली कर लें, जैसा कि वाकिफ़ से पहले हम ना लगाकर ना वाकिफ़ बना लें, उम्मीद से पहले हम ना लगाकर ना उम्मीद बना लें। ना वाकिफ़ में असल कलमा वाकिफ़ है, ये कलमा है, और ना हमने कलमे से पहले लगाया तो इसलिए ये साबका है। देखिए, कलमे से पहले ना लगाकर कलमा कौन सा है, यहाँ पर वाकिफ़ है, वाकिफ़ से पहले हमने ना लगाई तो जुमला क्या बन गया स्टूडेंट्स, ना वाकिफ़।
واقف سے پہلے جو ہم نے نا لگایا وہ سابقہ ہے. سابقہ مطلب پہلے. آپ نے جملہ بھی سنا ہوگا، یہ ہمارے سابقہ پرنسپل ہیں، یعنی گزشتہ، پریویس، گزرے ہوئے، پہلے کے. یہ ہمارے سابقہ ٹیچر ہیں، یعنی جو پہلے، یعنی ہم نے اس سے پہلے، کلمے سے پہلے نا جو لگانا ہو وہ سابقہ ہے. یا آپ نشانی یاد رکھ لیں کہ سابقہ مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا، یعنی پہلے لگانا. کلمے سے پہلے جب ہم نا لگاتے ہیں تو نا واقف ہوگا، اور نا ہم نے کلمے سے پہلے لگایا تو اس لیے یہ سابقہ ہوگا. کلمے سے پہلے نا لگائے، پہلے، بعد میں نہیں، تو وہ سابقہ ہوگا. اب لاحقہ کیا ہے؟ لاحقہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی کلمے کے آخر میں بڑھا کر، یعنی اس کا آپ الٹ کر دیں، اس کا پہلے اس کا آخر میں بڑھا کر معنوں میں کچھ اضافہ یا تغیر پیدا کرے. جیسا کہ خوف کے آخر میں ناک بڑھا کر خوفناک بنا لیا جائے. ہم لفظ بولتے بھی تو ہیں نا کہ وہ رات کا منظر، جنگل کا منظر بڑا ہی خوفناک تھا، بڑا ہی دردناک تھا، بڑا ہی ہیبت ناک تھا. دیکھیں چیز آتی ہے تو منہ سے نکلتی ہے نا. ہم نے سیکھے میں یہ کیا ہے؟ ہیبت. میں نے تو آپ کو خوف بتایا، اب ادھر ہیبت کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے. ناک اس کے بعد، یعنی کلمے کے بعد جو ہم لگائیں، ہیبت ناک، خوفناک، ٹھیک ہو گیا. شرمناک، یہ کیا ہے؟ لاحقہ ہے. تو بڑھا خوفناک میں اصل کلمہ خوف ہے، اصل چیز تو ہم نے بتانی خوف ہے نا، اور نا چونکہ اس کلمے کے آخر میں لگایا تو اس لیے یہ لاحقہ ہے. سابقے میں ہم نے کوئی بھی نا ہے، نا، ٹھیک ہو گیا، نا واقف، نا امید، ٹھیک ہے. اور تو یہ سابقے میں جو نا آتا ہے وہ کلمے سے ہم پہلے لگاتے ہیں. نا واقف، نا امید، یہ نا پہلے لگایا، جبکہ لاحقے میں ہم کلمے کے بعد لگاتے ہیں. مثال خوف کے بعد ناک، خوفناک، ہیبت ناک، کلمے کے بعد لگانے والا کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے وہ لاحقہ کہلایا جاتا ہے. امید آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو سابقے اور لاحقے میں آپ کے سامنے کروں گی بلکہ سبھی مل کے کرتے ہیں. الف. چلیں جی آپ بتائیں سابقہ کا یہ استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ الف سے ہم کیا بتائیں؟ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا ہو سکتا ہے جی؟ اس کا استعمال الف سے سابقہ اٹل. یہ تو لکھ ہی نہیں رہا. اٹل بھی ہو سکتا ہے. امر، ٹھیک ہو گیا. اور کیا ہو سکتا ہے؟ اٹوٹ. یہ ہم سابقے یعنی کلمے سے پہلے جو لفظ لگتے ہیں ہم وہ لکھ رہے ہیں.